آج کی تلاوت سنیں. ایسا دیکھیے امثال 15واں باب اور اس کی 30 آیت ہم دیکھیں گے. ہاللیلویا. امثال 15واں باب اور اس کی 30 آیت ہم تلاوت کریں گے. میرے ساتھ اسے مل کر بولیے گا میرے پیچھے پیچھے. خداوند کی آنکھیں ہر جگہ ہیں اور نیکوں اور بدوں کی نگران ہے. خدا کے پاک کلام کا پڑھا سنا بولا جانا ہم سب کے لیے برکت کا وسیلہ ہے. بیٹھیے تشریف رکھیے. ساتھ ہم سب زندہ ہیں اور خدا کی حضوری میں ہیں, اس لیے ہاللیلویا خدا کی تعریف ہو. آج کلام مقدس میں سے جو حوالہ آپ کے سامنے تلاوت کیا گیا اس میں سے آج کا مضمون اپنے پاس نوٹ فرما لیجئے. آج کا مضمون ہے ہم خدا سے چھپ نہیں سکتے. ہاں جی, کیا جی مضمون؟ ہم خدا سے نہیں چھپ سکتے. یہ غلط فہمیاں ہیں. ہم خدا سے چھپ جائیں گے, خدا ہمیں نہیں دیکھ رہا, ہم جو مرضی کریں, یہ سب ہمارا وہم ہو سکتا ہے, ہمارے اندر غلط سوچ ہو سکتی ہے. لیکن کلام کی اتم سچائیاں یہ ہے کہ ہم خدا کے حضور سے چھپ نہیں سکتے. خدا ہمیں دیکھتا رہتا ہے. کلام میں آج کا حوالہ لکھا ہے خداوند کی آنکھیں ہر جگہ ہیں. ہر جگہ کا کیا مطلب ہے؟ ہر جگہ کا کیا مطلب ہے؟ کہیں بھی ہے, ہم کسی بھی جگہ پر ہیں. ہم زمین پر کسی بھی جگہ پر, کسی بھی شہر میں ہے, کسی بھی ملک میں ہے. ہم سمندر یا سمندر کی تہہ میں ہیں. ہم سمندر کے اوپر بحری جہاز چل رہا ہے, ہم آبدوز میں ہیں. ہم ہوائی جہاز میں سفر کرتے ہوئے ہم فضاؤں میں ہیں. ہم پہاڑوں پر ہیں, ہم جنگلوں میں ہیں, ہم دشت میں ہیں, ہم کہیں بھی ہیں. ہم کسی بھی جگہ پر ہیں. خدا کی آنکھیں ہمیں دیکھ رہی ہیں. اس لیے کہ خدا کی آنکھیں ہر جگہ موجود ہیں. اس لیے کچھ بھی کرتے ہوئے, کچھ بھی نیکی یا بدی دونوں کرتے ہوئے ایک بات کا خیال آپ کے دل میں ضرور ہو کہ خدا دیکھ رہا ہے. انسان نہیں دیکھ رہا, کوئی بات نہیں. ماں باپ نہیں دیکھ رہا, نہ پرابلم. بہن بھائی نہیں دیکھ رہے, نوجوانوں گئے اسکول تو بٹا لگا کدھر اور چلے گئے, امی ابو کو نہیں پتا, لیکن خدا دیکھ رہا ہے. خدا کی نگاہیں آپ پر ہیں. خدا آپ کو دیکھ رہا ہے. اور سب سے بڑی خوشی کی بات یہ ہے خدا کی آنکھیں ہر جگہ ہے اور نیکوں اور بدوں کی نگران ہے. بولے ہاللیلویا. نیکوں اور بدوں دونوں کی نگرانی کر رہی ہے, دونوں کو دیکھ رہی ہے, دونوں خدا کی لسٹ میں ہے. یہ نہیں کہ صرف جو خدا کے لوگ ہیں خدا صرف انہیں ہی دیکھ رہا ہے. خدا دونوں پر اپنی نگاہیں گاڑے ہوئے ہیں. اچھا کر رہے ہیں تب بھی, برا کر رہے ہیں تب بھی خدا دیکھ رہا ہے اور سب کچھ دیکھ رہا ہے اور سب کو دیکھ رہا ہے. ہاللیلویا. سب کچھ دیکھ رہا ہے اور سب کو دیکھ رہا ہے. آپ کوئی بھی ہے, میں ہوں, آپ ہیں,
دنیا کا ہر شخص خدا کی نگاہ میں ہے، خدا کی نگاہیں لگی ہوئی ہے. اس لیے کچھ بھی کرنے سے پہلے اس بات کا ایمان رکھیے کہ خدا آپ کو دیکھ رہا ہے. دنیا میں سے کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، خدا دیکھ رہا ہے نا. ٹیلی ویژن کا پروگرام نہیں ہے نا، وہ کہتے ہیں کوئی دیکھے نہ دیکھے. ہاں جی، وہ تو ٹی وی اینکر ہے، اس نے تو ایسے ہی جملہ بنا دیا کیونکہ وہ سب کچھ نہیں دیکھ رہا، اسے سب کچھ نہیں علم ہے. لیکن میں آج آپ کو خدا کا خادم ہوتے ہوئے یہ یقین دلاتا ہوں کہ آسمان بھی خدا نے بنایا ہے، زمین بھی خدا نے بنائی ہے، سمندروں کو بھی خدا نے تخلیق کیا ہے، پہاڑ بھی خدا کے ہاتھ کی کاراگری ہے، اور انسان بھی خدا کے ہاتھ کی کاراگری ہے. اس لیے خدا ہر جگہ ہے اور ہر جگہ اس کی آنکھیں ہیں، اور وہ سب کو، نیکوں اور بدوں دونوں کو دیکھ رہا ہے. Be careful، کیونکہ اکثر ابلیس ہمارے کان میں ڈالتا ہے تجھے کون دیکھ رہا ہے، تجھے کوئی نہیں دیکھ رہا. لیکن اے میرے بھائی، اے میری بہن، تجھے دیکھنے والی آنکھیں ہیں، اور وہ خدا کی آنکھیں ہیں. ہمیں اس کے تابع رہنا ہے. آئیے ذرا زبور 139 نکالیے، زبور 139 اور اس کی پہلی 4 آیات ہم دیکھیں گے. اے خداوند، تو نے مجھے جانچ لیا اور پہچان لیا، تو میرا اٹھنا بیٹھنا جانتا ہے، تو میرے خیال کو دور سے سمجھ لیتا ہے، تو میرے راستہ کی اور میری بابگاہ کی چھان بین کرتا ہے، اور میری سب روشوں سے واقف ہے. دیکھ، میری زبان پر کوئی ایسی بات نہیں جسے تو اے خداوند پورے طور پر نہ جانتا ہو. کوئی بات رہی؟ خدا کو کیا نہیں پتا؟ تو نے مجھے جانچ لیا اور پہچان لیا. خدا جانتا ہے ہمیں. ہم انسانوں کو دھوکہ دے سکتے ہیں، خدا کو دھوکہ نہیں دے سکتے، کیونکہ اس نے ہمیں جانچ اور پہچان لیا ہے. وہ ہمارے دلوں کو جانتا ہے، اسے ہمارے دلوں کے اندر کے خیالات کا بھی پتا ہے، اسے کیا کیا چیزیں پتا ہے. اسی آیت میں لکھا ہے تو میرا اٹھنا اور بیٹھنا جانتا ہے. ہلیلویا. مجھے پتا ہے ہم کس نیکی کے لیے اٹھ رہے ہیں اور کس بدی کے لیے بیٹھ رہے ہیں. پتہ ہے اس کو، اس کے سامنے ہر چیز آیا ہے. تو خیال کو دور سے جانچ لیتا ہے. ہم انسانوں کو دھوکہ دے سکتے ہیں، میں تیرا بڑا سکا، میں تیری بڑی سکی. دل میں کچھ بھی ہو، باہر سے ہم لوگوں کو دھوکہ دے دیتے ہیں، لیکن اے میرے بھائی، اے میری بہن، خدا کو دھوکہ نہیں دے سکتے. خدا کو ہمارے دل کے خیال دور سے سمجھ لگ جاتے ہیں. ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کیا کرنا چاہتے ہیں، ہم کس سوچ کے تحت زندگی گزار رہے ہیں، خدا کو اس بات کا پتہ ہے. اور اس سے بھی بڑھ کر شاید کوئی ہماری ان چیزوں سے ہمارا اندازہ لگا لے، لیکن خواب سے کوئی نہیں چیک کر سکتا نا. کر سکتا ہے؟ خواب کوئی نہیں چیک کر سکتا. اور آپ کے لیے بری خبر ہے کہ خدا آپ کے خوابوں کو بھی جانتا ہے. بولے ہلیلویا. آپ خواب میں کیا خیالات رکھتے ہیں خدا وہ بھی جانتا ہے. خدا کو آپ کے خوابوں کا بھی علم ہے. کچھ بھی کون سی بات رہ گئی. اس لیے پلیز خدا کو چکر دینے کی کوشش نہ کریں، خدا کو چکمہ دینے کی کوشش نہ کریں. پنجابی کہتے ہیں خدا نو چارن کی کوشش نہ کریں. ہم کرتے ہیں، ہم خدا کے سامنے اپنے آپ کو نہتا اور
पॉजिटिव शो करते हैं, जबकि खुदा तो अंदर को भी जानता है कि ये अंदर से नेगेटिव है, ये अंदर से खराब है, इसकी सोच खराब है, इसका दिल खराब है, इसकी नेकी में भी बदी छुपी हुई है, इसके प्यार में भी नफरत छुपी हुई है। ये खुदा जानता है। लोगों को हम धोखा दे सकते हैं, लेकिन खुदा को धोखा नहीं दे सकते। एक और वाला जरा जल्दी से देखिएगा, ज़बूर 94 और उसकी 9वीं आयत। ये और आपको बरकत देगा, ये आयत जो है आपको और बरकत देगी। जिसने कान दिया क्या वो खुद नहीं सुनता? है जी। अगली बात है, जिसने आंख बनाई क्या वो देख नहीं सकता? खुदा के लिए क्या नामुमकिन है? खुदा के लिए क्या बैद है? खुदा तो सब कुछ कर सकता है ना? कोई बात है? और जिसे कान दिया सुन नहीं सकता? कि हम अंदर क्या बोल रहे हैं, है ना? कई कह रहे थे ओ जी मैं बड़ा गरीब हूं, अंदरों तेनों नहीं पता मैं बड़ी शहर हूं, है ना? झुक जाते ओ जी बस जी न। ये अंदर जो चल रहा है ना वो खुदा को पता है। बाहर तो हम सब कुछ दुनिया को दिखाने के लिए कर देते हैं, ये अंदर की बातें खुदा को पता है। तो जिसने कान दिया है क्या वो सुनता नहीं है? हमारे मुंह की बातें भी सुनता है, हमारे दिल की बातें भी सुनता है, और हम अंदर से जो बोलते हैं वो भी खुदा सुन लेता है। और जिसने आंख बनाई क्या वो देख नहीं सकता? हा? क्यों जीजो? क्या खुदा जिसने आंख बनाई वो देख नहीं सकता? देख सकता भाई, उसे हम अंधा ना समझे, वो खुदा है जो इस आंख की पुतली के अंदर भी जानता है। वो जानता है हमारे ब्रेन में कितनी तहें हैं, वो जानता है हमारी बॉडी के अंदर कितनी नसें हैं, वो जानता है हमारे दिल के वाल्व कितने हैं, कितनी शरियानें हैं, वो जानता है हमारे जिस्म के मसल्स कितने हैं, वो जानता है हमारे मुंह के बोलने में कितनी ताकत लगती है, और वो जानता है कि इस बदन को कितनी खुराक की जरूरत है। खुदा को समझाने और खुदा को चक्कर देने की कोशिश ना किया करे, वो सब जानता है। कान भी उसी ने बनाया है और आंख भी उसी ने बनाई है, और जिसने बनाया है उसको हम बेवकूफ नहीं बना सकते। उसको बेवकूफ बनाने की कोशिश भी ना करें, क्योंकि आसमान के खुदा के पास ये ताकत है कि वो दूर से उन बातों को भी जान ले। आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, आप दुनिया के किसी भी ओहदे पर हैं, आप कितने भी अमीर हैं, आप कितने ही हैंडसम हैं, आप कितने ही ब्यूटीफुल हैं, आप खुदा को चक्कर नहीं दे सकते, क्योंकि आपने खुदा को नहीं बनाया, खुदा ने आपको बनाया है। हालेलुया। खुदा ने आपको बनाया है और उसे पता है कि मैंने क्या चीज बनाई है। वो जानता है कि हम कितने काबिल हैं। अजीजों, सच्चाई का दामन अपने हाथ से न जाने दें, सच्चाई को अपनी जिंदगी में आने दें। अच्छा देखे, अच्छा सोचे, अच्छा करे, तो वो देखने वाला जिसकी निगाहें आप पर है वो खुश होगा कि मैंने क्या खूबसूरत शाहकार बना दिया है। ये मेरी बातों का यकीन करता है, ये मेरे कलाम का यकीन करता है, ये उन बातों का जो मैंने कही है उन पर अमल करता है। ये कितना खूबसूरत है, क्योंकि याद रखिए खुदा अंदर और बाहर दोनों पर निगाह करने की कुदरत रखता है। हम खुदा से छुप नहीं सकते। नेकी करे, इसलिए तो यीशु मसीह ने कहा कि जो तेरा दाहिना हाथ करे वो बाएं को पता ना चले। क्यों? क्योंकि खुदा को पता है कि इस हाथ में क्या है और ये किस हाथ में जा रहा है। मैं कई दफा बताता हूं, लोग जिस नोट का नंबर फटा होता है
वो मुट्ठी बातें नहीं कर सकते। मैंने तो नहीं देखना कि क्या दिया है ना, क्या दिया है मुझे नहीं पता क्या दिया है, लेकिन जब मैंने जेब से निकाल कर देखना फिर नंबर ही कोई नहीं है। और याद रखे, मजे की बात यह है, मैंने घर जाकर देखा तो पता चला, लेकिन जब आपने नीयत बांधी कि मैं ये फटा नोट डालूंगा या दूंगा, खुदा को पता नहीं। तो क्या उसकी बरकत मिली? क्या उस हदिये की ब्लेसिंग आप तक पहुंची? नहीं मेरे अजीज, मेरे बहन मेरे भाई, आपको उस हदिया डालने की कोई बरकत नहीं मिली, बल्कि आपको खुदा की नाराजगी का सामना करना पड़ा। मैंने कई दफा ये एक्सपीरियंस किया, अभी पिछले दिनों तक के सामने कोई चीज छुपी हुई नहीं है। मैं खुदा की हुजूरी और खुदा का डर आपके अंदर होना चाहिए। आपका मुंह बोल क्या रहा है? कई दफा आप किसी के मुंह पर कोई बदतमीजी नहीं कर सकते, लेकिन दिल के अंदर बाल उठने होता है ना, होता है अंदर ही अंदर से हम कह रहे हैं कभी मैं कुछ कह नहीं सकता। तो याद रखें, कलाम में लिखा है कोई गंदी बात तेरे मुंह से ना निकले। क्यों? क्योंकि जब तू गंदी बात बोलने के लिए अपनी नीयत बांधता है, खुदा उस बात को सुन लेता है, खुदा देख लेता है। बचिए, खुदा के साथ चलना बाबरकत है, लेकिन थोड़ा सा एहतियात करने की जरूरत है। एहतियात कीजिए। खुदा के सामने आप शायद माफी मिल जाए, लेकिन अगर आप अपने आप को कंट्रोल में रखेंगे तो यकीनन दूसरों के लिए बरकत और नमूने का वसीला बन जाएंगे। आइए एक हवाला जल्दी से और देखें, यिर्मयाह 16वां बाब और उसकी 17वीं आयत जरा जल्दी से देखिए। यिर्मयाह 16वां बाब उसकी 17वीं आयत। तारीफ हालेलुया। मेरा सफा पकड़ना चाहिए, निकालिए इसमें जी। सब रविशों पर लगी है, उनसे पोशीदा नहीं है और उसकी बददारी मेरी आंखों से छुपी नहीं। हाँ जी, क्या है जी? यिर्मयाह 16वां बाब उसकी 17वीं आयत में, क्योंकि मेरी आंखें उनकी सब रविशों पर लगी हैं। उन कौन है? ये उन कौन है भी? अजी बाजियो, ये उन कौन है? क्योंकि मेरी आंखें उनकी सब रविशों पर लगी हैं। उन, हु इज उन? मैं उन हूं, आप उन हैं, क्योंकि खुदा की आंखें हमारी रविशों पर लगी हुई हैं। कुछ भी पोशीदा नहीं, कुछ भी छुपा हुआ नहीं। खुदा की निगाह में आप इंसानों के लिए छुप सकते हैं, अंधेरे में जा सकते हैं, लेकिन खुदा की जात वो जात है कि अगर वो अंधेरे में भी चली जाती है तो वहां रोशनी हो जाती है, वहां चांदन हो जाता है, वहां लाइट हो जाती है। तो फिर खुदा के लिए तो अंधेरा भी अंधेरा नहीं है। खुदा की आंखें उनकी रविशों पर लगी है, वो मुझसे पोशीदा नहीं है। समझ लीजिए इस बात को, पोशीदगी में कुछ भी नहीं है। उनकी बद किरदारी मेरी आंखों से छिपी नहीं है।
हाँ जी, कुछ भी नहीं छुपा, कुछ भी नहीं छुपा। आप दिल में बुरे ख्याल बांधते हैं, खुदा को पता होता है, और कहां उसका नुकसान होना शुरू हो जाता है आपको पता नहीं चलता। आप समझ रहे हैं, आपके इन कामों को कोई नहीं देख रहा, क्योंकि ये तो सिर्फ मेरे दिल में है। तो एक है जिसने आपके दिल को बनाया है, हालेलुया। और एक ट्रांसमीटर ऊपर लगा हुआ, उसके पास भी है, वो दिल की बातों को, रविशों को समझ जाता है। मेरी बेटी, मेरा बेटा क्या सोच रहा है, सोचों को ठीक कर लीजिए, रविशें ठीक हो जाएंगी, रविशों को ठीक कर लीजिए, काम ठीक हो जाएंगे, कामों को ठीक कर लीजिए, आप दूसरों के लिए बाबरकत बन जाएंगे, और यीशु मसीह आपकी जिंदगी में नजर आना शुरू हो जाएगा। पौलुस रसूल ने बड़ी खूबसूरत बात कही गलतियों के नाम 30 बाब में। उसे कहा, मैं मसीह के साथ मसलूब हुआ हूं। कोई अगली आयत को पूरा करेगा, मैं मसीह के साथ मसलूब हुआ हूं। कोई आयत को पूरा करेगा, अब मैं जिंदा ना रहा, बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। अब मेरी जात नहीं है, अब मेरे ख्याल नहीं है, अब मेरी बातें नहीं है, मेरे अंदर जो है उसका नाम यीशु है, और अब मेरी बातें भी यीशु की बातें हैं, अब मेरे ख्याल भी यीशु के ख्याल है। अब मैं नहीं हूं, यीशु मेरे अंदर है, हालेलुया। काश अपने आप को ऐसे सांचे में डाल, कलाम कहता है वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यीशु का था, ताकि यीशु हमारे कामों के वसीले दूसरों को नजर आए, हम ज़ाहिरी तौर पर भी मसीही नजर आए, और हम अंदरूनी तौर पर भी मसीही नजर आए, हालेलुया। आप और मैं बच नहीं सकते। यूहन्ना की इंजील 4 बाब, वहां पर एक वाक्या, और वाक्या है सामरी औरत का। हाँ जी, उस सामरी औरत की लाइफ के जो हिडन्स थे, जो राज थे, वो सामरी औरत को ही पता थे। बस लोगों की कुछ क्यास आराइयां थी, या जो दो थोड़ा क्लोज जानते होंगे वो को 50% जानते होंगे। उस औरत की सच्चाइयां उसे ही पता थी, उसके राज सिर्फ उसे ही पता थे, उसकी रविशें उसे ही मालूम थी। और दोपहर के वक्त पानी भरने के लिए जाती, वहां उसकी मुलाकात यीशु मसीह से हो जाती है। अब यीशु मसीह उस औरत से पानी मांगता है। बातचीत का आगाज पानी मांगने से हो रहा है, और यीशु मसीह की यह पहली मुलाकात थी सामरी औरत के साथ। पहले से यीशु उस खातून के साथ वाकिफ नहीं था उस वक्त, लेकिन यीशु मसीह उसकी जिंदगी के राज बता देता है। यीशु कहता है अपने शोहर को लेकर, उससे कहा मेरा शोहर है नहीं। तो यीशु ने से क्या कहा, पहले कितने शोहर है, कितने निका पर जरा होने हो तेरा शोहर नहीं है। यीशु को कैसे पता चल गया? सामरी औरत के साथ तो मुलाकात ही पहली हो रही है, यीशु उसकी जिंदगी के साल की बातें कैसे जान गया? कैसे यीशु मसीह को इन बातों का पता चल गया? अजीजों गौर से बात सुनिएगा, आप और मैं इस बात को इस हवाला से जान जाए कि यीशु मसीह जिंदा खुदा है, क्योंकि कलाम में लिखा है कि जिसने बेटे को देखा उसने बाप को देखा, और बाप यीशु मसीह कहता है कि मेरे अंदर बाप बसता है, मैं बाप के जलाल को ज़ाहिर करता हूं। आज मैं और आप इस बात को समझ जाए कि अगर उसे
सामने खुली पड़ी है। हमारी जिंदगियां भी उसके सामने खुली पड़ी है। हम खुदा के सामने झुक नहीं सकते, लेकिन फिर भी इन सारी गलतियों, इन सारी कुताहियों, इन सारी तकसीरों के बावजूद यीशु मसीह सामरी औरत को बचाना चाहता था। बोले हालेलुया। यीशु मसीह चाहता था कि इस खातून की जिंदगी बच जाए। इन सारी गलतियों, गुनाहों, खताओं के बावजूद यीशु से बचाना चाहता था, और यीशु कामयाब हो गया क्योंकि उस औरत ने यीशु को कबूल कर लिया। बोले हालेलुया। मैं और आप भी छुप तो सकते नहीं हैं, छुप नहीं सकते। यीशु को सारा पता है, सारा पता है। हम सामने क्या कर रहे हैं, हम छुप कर क्या कर रहे हैं, हम कहाँ क्या कर रहे हैं, उसे पता है। कहाँ हम अपने काम में कैंची चला रहे हैं, कहाँ हम रिश्वत ले रहे हैं, कहाँ हम दूसरों का हक मार रहे हैं, कहाँ हमारी जिंदगी में लालच है, कहाँ हम लालच में आकर दूसरों का हक मार रहे हैं, सारा पता है उसे। हमारी नेकियों का भी पता है, याद कराएं, और उसे बदियों का भी पता है, इकरार करें। कहें मैं इकरारी हूं। खुदा को, मैं आपको ये राज की बात बताने लगा, जो उसके सामने आकर मान जाता है उसके लिए दरवाजे खुल जाते हैं। हालेलुया। मैं आपको एक मिसाल देता हूं। बाप है, बाप को पता है कि मेरे बच्चे ने मेरे पैसे कटे, वो बेटी है, बेटा कोई भी शरारत कर सकता है। अब बाप को पता है, बाप पूछता है, हाँ भाई मेरे पैसे कितने कटे? जितने कटे होते ना सारे तो ज्यादा माफिया, ओए मैंने पता ही नहीं, मैं तो अंदर आया ही नहीं, मैनू की पता, मैं तो ਤੁਹਾਡੇ ਬਟੂਏ ਨੂੰ ਹੱਥ तक नहीं लाया। बाप जानता है कि किसने निकाले। वो आपकी ओवर एक्टिंग से इंप्रेस नहीं होना, ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਟ ਚੜਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਟ ਚੜਨਾ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਰੀਟੇਟ ਹੋਣਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਦੂਜਾ ਰਬਾ 3rd डिग्री शुरू कर देनी है ना। खुदा को 3rd डिग्री पर मजबूर ना करें। अभी तक वो शफकत से भरा हुआ है, रहमत से भरा हुआ है, प्यार से भरा हुआ है, माफ करने के लिए तैयार है। उसके सामने आकर हीले बहाने करने की बजाय साफ सीधे अल्फाज में मान जाइए कि मैं गुनाहगार हूँ, मुझसे गलती हुई है, वो आपको माफ करने के लिए तैयार है। बोले हालेलुया। तैयार है, कोई हीलोजत नहीं है। जब उसे पता है, आज के कलाम का मकसद ये है कि उसे सारा ही पता है, तो माफी मांगने की तो जरूरत की जरूरत है। एक बंदा था, मेरी उसके साथ कुछ बहस होगी, वहां तो ये मसला क्लियर नहीं हुआ। उसे कहा जी हमें रोज तौबा नहीं करनी चाहिए। उसे कहा देखो जी जो असी आ ही जाते हैं हजूरी च ते बस वो समझ जाता है। मैं कहा तेरे जो किसी ने कसूर किए हो तो तेरे घर आ जाए तो तू समझ जाएगा कि माफी मंगनी आया, भावे तुम घुटन आया हुआ है। भाई जब तक इकरार नहीं करेंगे, जब तक मुंह से बोलेंगे नहीं, जब तक इकरार करके कहेंगे नहीं यस आई एम सिनर, मैंने गुनाह किया है, मैं गुनाहगार हूँ, ऐ आसमान के खुदा अपने बेटे यीशु के नाम से मुझे माफ कर दे, तब तक माफी नहीं है। और जब आपके मुंह से इकरार होगा, खुदा माफ करके आपको गले से लगा लेगा और आपको बहाल भी कर देगा। तो बुलंद से कर देता हालेलुया। वो सब जानता है, उसे सब पता है, उसकी आंखें सारी दुनिया पर है, उसकी निगाहें नेकों और बदों दोनों को मॉनिटर कर रही है। इसलिए आइए झूठ बोलना, अपने आप को धोखा देना छोड़ दें कि शायद खुदा को पता नहीं है, खुदा को सब पता है। आइए
پڑھ کر اقرار کرے اور خداوند یسوع کو اپنی زندگی میں لانے سے پہلے توبہ کر کے معافی مانگے اور ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہو جائے. آئیے اپنی جگہوں پر کھڑے ہو اور خداوند کے حضور آج اس بات کا یقین کر لے کہ میں